अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। हम करता हूँ आप सब लोगों का एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खराफियत से होंगे, रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे और इंजॉय भी कर रहे होंगे। Assalamu alaikum everyone. How are you doing? Okay, now say this in Urdu. Hmm? Say in Urdu now. Ow. Oh, up Casio. What do we say assalamu alaikum in Urdu? Assalamu alaikum, yeah. Oh, yeah, you mean in Islamic and hi. Okay, so the good thing is today is Saturday, so तो इसका मतलब है कि फजर इज़ फास्टिंग टुडे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सिर्फ सैटरडे को ओनली वीकेंड पे फजर रोज़ा रखती है स्कूल की वजह से। फजर आर यू फास्टिंग? Yeah. So even because the problem in the school is that I have because we have lunch, so we have to like eat. They push you to eat, or you just want to have a meal or what? Oh no. Schools are not like that. Probably because you learned it in Pakistan, I think, didn't you? Oh, when we used to go to the school Yeah. back in the days, yeah. So Yeah. we were supposed to take our lunch from home. Not the school provides nothing. No, in UK schools are different to Pakistan's because basically we just eat in the hall. You eat in the whole as a whole class, innit? No, like in different years, of course. So Uh, like going to like it was actually only year 3 and like other classes. okay. So you fasting, yeah? Mhm. Where do you keep your fast? Uh, Okay, tell me where we keep our fast. I don't know. Do we keep it in our head? Where do we keep it? Then? I don't know. You don't know where you keep your fast. No. No, what do you think? I think we keep our fast in our stomach, aren't we? Because we're not eating or drinking anything, are we? No. No, we're not eating, huh? I mean, yeah. Okay. After the siesta Sarah, yeah, you did not eat or drink anything, did you? I mean, no. 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 Yeah, mashallah. So, how many fasts you've already done? I think you done like is it a fifth or sixth fast, isn't it? I think it's the 6th today. It's the sixth one, isn't it? Yeah, I think so. Yeah. Oh, mashallah, you getting bigger. Okay. You wanna play there? No, I'm fine. Huh? No, I'm fine. Not try, Fajr. It's okay. No, I don't want to. I'm actually It's okay. Oh, seriously. You can try. Oh, look at it down there. It's broken. Yeah, it's okay. It's broken, but How I take it? yeah. Okay, just go. Scared on sudden. You don't need to scare, Fajr. Mashallah, you're a big baby. Bit scared. Yeah. You like it? Yeah. Did you hurt yourself or what? No, I'm okay. You okay? Yeah. What happened there? Nothing. Well, I think only the button. Yeah, the button. Oh, yeah, it's undone only. Oh, okay. So मुझे लगा था कि शायद उसकी जैकेट वहाँ पे स्टक होगी तो वो फट गई थी या उसकी जिप वगैरह खुल गई थी। It's just a ऐसा कुछ design. It's just a design, isn't it? Yeah. Oh. I think it's kind of like making you warm. If you don't want it to be warm, maybe you can like. Yeah, take it off. like yeah, I think they did the right thing because when you sat down, when you sit here, so you can just take it off and you can Sit properly. sit properly in it. Oh, that's why they made it. Yeah, that's a clever design, isn't it? Yeah. तो जब यानी कि जब आप बैठते हो ना तो आप इसको अनडन कर सकते हो और ये इस तरह खुल जाता है तो फिर यानी कि आप इजीली बैठ सकते हो तो सब कुछ आपको यहाँ पे स्टमक पे फील नहीं होता। Yeah. Yeah, That's they did that's make been it cleverly clever thought out, design. isn't it? Yeah, they did make a clever design. Yeah, they did actually. Yeah. Oh, okay. It's sunny now today. Yeah, but it's actually the spring today. इज है सी द प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे कभी कभार ये समझ नहीं आती कि जिस दिन इस तरह की आज बहुत ही अरसे मतलब काफ़ी अरसे के बाद धूप आज धूप निकली है
प्रॉब्लम ये होती है कि जब जिस दिन धूप निकल आती है ना, उससे इतनी शदीद किस्म की ठंड होती है ना, और शदीद किस्म की हवा चल रही होती है। कितना प्यारा मौसम है, लेकिन हवा वो काफ़ी ठंडी शदीद किस्म की चल रही है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का। Yes, but you want to say something to the family? Family. Yeah? You want to say something to the Khushi, or Cushy. The cushy. yeah, Khushi, you want to say something to her or Fatima or to anybody? What about my cousins? All of them. Yeah, who are they? Okay, tell. Who's Khushi? So Cushy is one of. She's like also really tall, and she's in high school. I forgot what the name was because. No, what is she to you? Huh? Is she your cousin or what? She's my cousin Okay, where she lives? in Pakistan. Is she your good friend? Yes. Do you like her? Okay. जी तो दोस्तों, हम गए हुए थे पाकिस्तान नवंबर में। अल्लाह का शुक्र है, तो हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा था वहाँ पे सबके साथ ही। तो खुशी जो है वो मेरी जो सिस्टर है उनकी बेटी, यानी कि मेरी भांजी है। तो फजर की और खुशी की बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छी और गहरी दोस्ती अभी भी माशाल्लाह इनमें आपस में बात होती रहती है। Are you feeling thirsty or you feeling hungry? Both. Both. Look at Bubba's shirt. It's this Jordan. जी तो दोस्तों, फजर को भूख लग रही है और प्यास भी लग रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि तकरीबन सिर्फ 1 ही घंटा रह गया हमारा रोज़ा अफ्तार होने में। तो इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद ना भूख रहेगी ना प्यास रहेगी। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे रोज़े कबूल फरमाए जैसे भी हम रख रहे हैं। You wanna go home? Probably home. You wanna go home probably? Why are you missing your games now? Oh. No. Look at the camera. Look at. Huh? Why? All the time, what she does is she just play games on her iPad. She play games on her iPad, or she play games on my on my MacBook. That is what she does all the time, aren't you? No. Why are you feeling shy? Because he's. No, I'm telling the truth. I'm telling the truth to the family, you know. No, mashallah. Fajr is a good baby, mashallah. Yeah. Are you good baby? Yeah. Yeah? Okay. Say I love you, Dado. I love you, Dadu. I love you, Dadu. Yay! I love you, Pupo. I love you, Popo. Yay! जी तो दोस्तों, मैं लोरी उठाने के लिए यहाँ पे पहुंच गया हूँ। मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਲੌਗਰ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਲੌਗਰ ਹੈ, कैमरा ही घर फुल है। मेरे पास कैमरा है, मैं जिससे वीडियो शूट करता हूँ। तो अब रोज़ा अफ्तार हुआ तकरीबन 6:10 पे, और मेरी जो शिफ्ट है वो 7 बजे शुरू होती है ना। तो अफ्तारी करने के बाद नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो मैं फटाफट आके मैंने सोचा कि चलो यार जल्दी से ना मैं ना लोरी उठा के ले आता हूँ, तो नमाज फिर बाद में पढ़ लूँगा। ओ एनी मैं जल्दी की थी मैं कैमरा ही भी नहीं चुकिया। एडा बड़ा व्लॉगर है, सानू नहीं किसी शायद की जरूरत। ओह माय गुडनेस। ओके, तो फिलहाल जॉब तो कोई नहीं आई, तो अभी लोरी को घर लेके चलते हैं और फिर कैमरा जाके चुकते हैं ताकि प्रॉपर वीडियो बना सकिए। तो चलो फिर निकलते हैं। जी तो दोस्तों, जॉब आ चुकी है। जॉब है मर्सिडीज बेंज की V क्लास की जो वैन होती है, जो लग्जरी गाड़ी होती है वैन में, वो जॉब आई है। और वो जॉब हमने जाके उठानी है सेंट्रल लंदन से, हाइड पार्क से। तो ऐसे जो उसमें प्रॉब्लम तो है कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसका जो है ना वो फ्लैट टायर है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और उसको हमने स्लाव में लेके जाना है। तो अभी वहाँ पे जाके देखते हैं कि सिचुएशन क्या है।
हमने सेफली मर्सिडीज बेंज वी क्लास को उतार दिया है। एज सच तो इस गाड़ी पे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, अपार्ट फ्रॉम द फ्लैट टायर। एक्चुअली कस्टमर मुझे बता रहा था कि यार वो सेंट्रल लंदन में चला रहा था 15-20 माइल पर आवर की स्पीड से, आउट ऑफ नोवेयर उसके सामने फोक्स आ गई। यहाँ पे अक्सर मैंने भी फोक्सेस रात को इस तरह घूमते फिरते हुए फ्रीली देखी हैं, और रात के टाइम मोस्टली वो निकलती हैं अपने बच्चों के लिए खाना वगैरह ढूंढने के लिए वो निकलती हैं। तो वो कह रहा था आउट ऑफ नोवेयर उसके सामने फोक्स आ गई है, तो वो कह रहा था कि उसकी स्पीड थोड़ी बिल्डअप थी, तो कहता वो गिवन टाइम में ब्रेक लगा नहीं सकता था। तो उसने फिर गाड़ी को कह रहा था मैं थोड़ा लेफ्ट पे किया है कि पता नहीं राइट पे किया है, तो एकदम से जो व्हील था ना, जो टायर था वो कर्व में लगा है, तो उसकी वजह से वो कह रहा था मुझे टायर के फटने की थोड़ी सी आवाज़ आई थी। तो मैंने उसके बाद में लाइट मार के देखा है, मुझे तो ना ही रिम के टूटने में रिम में कोई क्रैक नज़र आया और ना ही टायर फटा हुआ नज़र आया। तो हो सकता है जो टायर है वो उसकी इनर साइड से फटा हो, जारी बात है, ऑब्वियसली हम तो आउटर साइड पे देख रहे हैं ना। तो जो भी है हम उन्हें वहाँ सेटल अंडर से उठा के यहाँ पे सलाव में ले के आ गए हैं और सेफली उनको उतार दिया है। यहाँ पे एक टायर शॉप है, वहाँ से वो अपना गाड़ी का टायर चेंज करवा लेंगे। काफ़ी परेशान थे बेचारे, वो कह रहे थे कि यार पूरा वीक का वो टैक्सी ड्राइवर है बेसिकली, वो कह रहे थे कि यार पूरा वीक प्रॉपरली काम आया नहीं है, आज थोड़ा काम था तो आज ये हो गया। तो मैंने उनको तसल्ली दी, मैं कहा भाई परेशान मत हो, जो भी होता है अल्लाह की रज़ा से होता है और अल्लाह की ही तरफ से होता है जी। तो दोस्तों मुझे एक और जॉब मिल गई है, वो जो जॉब है वो है BYD की गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है आई थिंक। उसमें भी सेम प्रॉब्लम है, उसका भी एक फ्लैट टायर है। तो वो कह रहा था कि टायर तो पंक्चर है, वो कह रहा था कि स्क्वीकी सी नॉइज़ भी आ रही है उसके टायर में से, हो सकता है कि कोई सस्पेंशन का इशू भी हो। तो वो तो वहाँ पे जाके पता लगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या गाड़ी के साथ। तो चले वहाँ पे चलते हैं, जाके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो फिर वहाँ पे जाके फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखने पे मुझे ऐसा कुछ और तो ज़्यादा फील हो नहीं रहा, अपार्ट फ्रॉम के उसका जो पैसेंजर साइड का जो फ्रंट व्हील है वो ही फ्लैट हुआ है। इसके अलावा तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। बाकी मैंने वॉक अराउंड चेक भी किया है कि अगर कोई और भी डैमेज है बॉडी में या टायर किसी और टायर में, तो वो विजिबली मुझे नज़र नहीं आया। तो इस लुक लाइक है कि ओनली कि जो फ्रंट पैसेंजर टायर है सिर्फ वही फ्लैट हुआ है जी। तो दोस्तों हमने उस गाड़ी को सेफली अनलोड कर दिया है, लेकिन उसकी थोड़ी सी कहानी है। एक्चुअली इनिशियली मैं सिर्फ यही समझ रहा था कि उसका सिर्फ जो पैसेंजर साइड का फ्रंट व्हील है ना, सिर्फ वही फ्लैट हुआ है और इसके अलावा इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाड़ी को उठाने के बाद जो गाड़ी का जो ओनर था वो मेरे साथ ही बैठ गया था, क्योंकि मुझे उसको भी ड्रॉप करना था गाड़ी के साथ। ऑब्वियसली गाड़ी तो फ्लैट हो गई थी, वो चला के जा तो सकता नहीं था कहीं पे भी। तो वो उसने मुझे कहानी बताई, उसने कहा कि यार मैं ना ड्यूल कैरेज वे पे जा रहा था, तो मुझे ऐसे चला रहा था तो मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे ना व्हील के नीचे कुछ आया। तो कह रहा था मैंने सोचा शायद कोई वाटर बॉटल हो गई या कोई इस तरह का कोई टिन का कैन आ गया होगा नीचे। तो कह रहा था मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ आया है। तो कह रहा था मैं जब थोड़ा सा आगे गया हूँ ना, तो मुझे ऐसे गाड़ी ओवेसली स्पीड के साथ चल रही थी, तो ऐसे मुझे अपनी लेफ़्ट साइड की जो विंडो है उससे मुझे ऐसे स्पार्क निकलता हुआ महसूस हुआ है। तो कह रहा था मुझे समझ नहीं आई कि ये हुआ था कि मैंने फिर अपने राइट साइड पे देखा कि शायद इस साइड से कोई गाड़ी गुजर रही हो, तो हो सकता है उसका रिफ्लेक्शन मुझे अपनी लेफ़्ट वाली विंडो में नज़र आया। तो कह रहा मैंने पीछे देखा तो पीछे भी कुछ भी नहीं था, तो मैंने फिर से देखा तो फिर स्पार्क ऐसे करके निकला था। तो उसने कहा फिर मैंने गाड़ी को साइड पे रोक लिया। तो मैंने सोचा कि मैं देखूँ तो सही एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, स्पार्क आ कहाँ से रहे हैं। तो वो कह रहा था कि जब मैं वो गाड़ी से उतरा और उसे दूसरी तरफ जाके देखा, तो कह रहा था कि मैंने व्हील को हाथ लगाया ना, तो वो मेरी उंगली को यहाँ से ना टिप को अभी तक वो कह रहा था कि बर्निंग सी सेंसेशन सी हो रही है। क्योंकि वो सारी बात एयरलॉस जो थे वो रोड के साथ रगड़ी जा रहे थे, रब हो रहे थे तो ऑब्वियसली तो वो हीट जनरेट होती है। तो वो कह रहा था कि जब उसने उसको हाथ लगाया तो उसको अभी तक बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है। तो वो कह रहा था कि मैंने उससे कहा कि यार जब तुमने पहली मरतबा स्पार्क देख लिया था तो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे कुछ नहीं है शो हुआ कि भाई गाड़ी के टायर में हवा कम हो गई है, या क्योंकि आजकल की जो गाड़ियाँ ना वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाई हुई है, वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे ना रिलाई करती हैं। तो क्योंकि अगर कुछ भी गाड़ी में हो जाता है ना, अगर किसी फॉर एग्जांपल अगर टायर में
हवा कम हो जाती है या वो फ्लैट हो जाता है तो फ़ौरन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या डैशबोर्ड पे ना वो साइन आ जाता है कि इसमें हवा कम हो गई है या ये टायर फ्लैट हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा कोई साइन नहीं है। वो कह रहा था कि यार ऐसा कोई साइन नहीं है। तो जब मैं गाड़ी से बाहर निकला चेक करने के लिए, उसके बाद जब मैं गाड़ी में आके बैठा तो तब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आया कि गाड़ी का टायर जो है ना वो फ्लैट हो गया हुआ है। तो बस यही कहूँगा भाई, बी वेरी 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 केयरफुल ऑन द रोड। और जब कस्टमर को ये महसूस हो गया था कि यार उसने स्पार्क देख लिया, तो बेहतर यही था कि वो गाड़ी को साइड पर लगा के उतर के एक दफ़ा देख लेता, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। तो और ऊपर से प्रॉब्लम ये थी कि वो जो गाड़ी थी वो इलेक्ट्रिक थी, गॉड फॉरबिड अगर वो उसमें आग लग जाती तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो लकली अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कस्टमर भी सेफ़ है और गाड़ी भी तो उसे ड्रॉप ऑफ कर दिया। तो ये हमारी लास्ट जॉब थी आज की। तो आज तो फिर करते हैं आज के ब्लॉग का इख्तिताम। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।